So, very good evening to all of you, my dear friends. Is my voice audible to all of you? Please confirm me. Is it audible? Is it clear? All right. So, today we will analyze the what sort of questions the RBI used to like ask in the phase 2 examination, and what are the sources basically. And in this session, we will also see that how to write a good answer. Okay, how to write, what we need to know about writing an answer, because phase 2 is like 50% weightage is for your descriptive writing sessions. All right, and for descriptive answer writing, you need to know that from which sources we need to collect information in order to like your answers more lively. Why I'm talking about more lively, making your answers more lively? Because I am considering that each one of you would connect your answer, would articulate your answer with the current affairs. That only can make your answers more lively. Okay, so it is very necessary that while writing an answer, at least you should inculcate some of the current affairs, the point from the current affairs, that whatever going on currently in the news. Okay, whatever the directions the government has put on, or whatever the initiatives taken up by the government of India, or if there is any case study or any pilot project that has been launched, case study related to what? Any of the state, any of the Indian state would have performed like very, very good in that particular like in order to like implement that particular policy. So you can use such case studies while answering your questions. These things actually make your answers different from the other candidates, from the other aspirants, and it is going to make your answers very lively. Okay, and definitely the current affairs part, whichever whatever you will articulate, whatever you will inculcate in your answers, it is going to give you edge.
edge with respect to the other answers. All right. So by this only we will try to practice the question answer sessions for the phase 2, and we will definitely launch a separate phase 2 session also for the RBI for 2024. And in this session we will try to cover up through the current through the practice session, self practice sessions for the questions, descriptive questions. Apart from that, we will provide you the subjective questions. Okay, and the test series will be accordingly will be provided. More than 10 test series will be provided in the phase 2 session. So you will definitely going to get benefit from the RBI phase 2 session. So I think we should start the session because it's already like 4 to 5 minutes. So see, I always discuss in phase 1 also. I have discussed that you need to understand that what are the sources of the RBI, from which sources they used to pick up the questions. When you came to know about the sources, now then your direction of preparation direction would be streamlined. It would be streamlined. Okay, means it will go in the correct direction when you will follow that sources. And believe me, we used to follow the original sources. We took in the mentorship program, we took like weekly current affairs sessions from March till 25th of August we took in the session. And most of the question in the GA in the phase 1 part were curated from those like current affairs from newspapers. They have picked up news from the current affairs directly and they framed the questions in 2024. Okay, means it is not like you have like bulk of information about the you overloaded with the schemes part. Okay, so it is very necessary in order to understand these things. All right, so let's start the session. That what sort of questions were asked in 2023. See here, the first question that were asked about the ONDC, Open Network for Digital Commerce. Okay, and what was the question? What is ONDC? एकदम से straightforward question आया था. What is ONDC and how it will beat other commerce giant, e-commerce giant like Amazon and Flipkart? So ONDC was, see the examination, when the examination of phase 2 were held on, it is in July 2023. And when it was in the news, see 11th of July, again from 8th to 23rd of July, there is a like conventions. It also talk about the ONDCs. ONDC announces the launch of ONDC Academy for sellers, other network participants to grow online. So these things were there in the month of July. Okay, and they have framed the question accordingly. The basic concept behind the ONDC and how it is going to beat the e-commerce giant like Amazon and Flipkart. So let's try to understand this question through a sample answer. I'm just putting forward to you a sample answer over there. That how to frame your answers. You need to understand that how you need to frame the answers. See, first of all, you give you a like easy definition. Whatever being asked na in the question paper, because they have asked what do you understand by ONDC, then you have to define that what is ONDC. So ONDC is what? It is just a government backed project in of which aim to enable the small merchants and mom and pop stores. Mom and pop stores means what? Family stores, है ना? जो small independent family stores are there, उनको एक e-commerce एक platform provide कर रहा है, that ONDC, and it is open network based. Means it is not a closed network based platform. It is open network जिसमें कि small merchants आ सकते हैं in order to sell their products. This is the ONDC, and it is about ONDC. We can say that it is a non-profit Section 8 company. Section 8 company कौन होता है? जो कि NGOs, non-profit organization, non-profit companies, they come under the Section 8 companies. Okay, under the Companies Act of 2013. So it is established by Department of Promotion of Industry and International Trade, DPIIT of Government of India, in order to develop what? Open source of e-commerce. ये आप ऐसा दे सकते हो. और currently क्या है कि ONDC has been rolled out in this pilot project पे है ना ये basis.
तो दिल्ली एनसीआर, बैंगलोर, भोपाल, शिलोंग एंड कोयम्बटूर, यहाँ पे रोल आउट हो चुका है ओएनडीसी और यहाँ पे चल रही है चीजें। सो अब आपको आना है, लाइक देखिए 10 मार्क का क्वेश्चन है, 400 मार्क्स में कंप्लीट करना है, एंड द क्वेश्चन इज बाइफरकेटेड इन 2 पार्ट्स, मींस 5 मार्क्स 5 marks weightage for this part and 5 marks weightage for this part. So equally you need to distribute your answer in 200 words. Okay, this is going to help. ठीक है, ऐसा नहीं है यार कि ओएनडीसी के बारे में पूछा, जस्ट डेफिनेशन लिखा और वी जस्ट शिफ्ट टू द अनदर पार्ट. नो, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज अगर आप डेफिनेशन सिर्फ लिख रहे हैं तो मतलब आप 1.5 मार्क्स का लिख रहे हैं, एंड व्हाट अबाउट 3.5 मार्क्स? तो ऑब्वियसली यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स, ओवरऑल मार्क्स नहीं मिलेगा आपको. अब जो 5 नंबर का वेटेज है, 5 मार्क्स का ये पार्ट है, इसमें आप यू आर राइटिंग 350 वर्ड्स, तो वो तो 5 मार्क्स के अंदर में ही देंगे ना, दे कैन गिव लाइक मैक्सिमम 4.5 मार्क्स, लेकिन क्योंकि स्ट्रेटेजी इज रॉन्ग, सो दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू, इवन इफ यू विल डील इट वेरी प्रॉपर्ली, बहुत अच्छे से नाइसली यू हैव आंसर्ड इट, इवन इफ दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू 4.5 मार्क्स, क्योंकि स्ट्रेटेजी इज रॉन्ग. ओके, so they will, मतलब उनको they will be compensated to give you 2.5 marks or 2 marks or 3 marks. तो how to steal the marks in the mains examination, this you need to understand. देखिए फिर ओएनडीसी का लिख दिया, फिर थोड़ा बेनिफिट्स लिखा कि ओएनडीसी का क्या बेनिफिट्स है. तो ऑब्वियसली बेनिफिट्स क्या होगा इसका? इट विल मेक द ई कॉमर्स मोर इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल टू द कस्टमर्स. फ्रीडम ऑफ चॉइस would like diversify for the customers. Okay, local businesses will pop up, they will get the platform for on the e-commerce in order to sell their local products, means somewhere it is going to boost up the role of MSMEs, okay, and small traders. उनका भी इनकम को जनरेट करेगा, वो बढ़ाएगा इनकम को. ऑल राइट, and obviously it is going to mitigate the it is going to decrease the monopolies of large e-commerce. और currently हमने क्या देखा था, we have seen in the current affairs sessions कि nearly 82% of the e-commerce market has been captured by these two entities. Which two entities? Amazon and Flipkart. तो ये जो है ना, और इसके लिए गवर्नमेंट ने 30% कैपिंग रूल भी लाया है इसी साल, in 2024 only government has put up capping rule कि इससे ज्यादा आप ई-कॉमर्स में अपना, क्योंकि अगर अमेजोन और फ्लिपकार्ट अगर फेल होता है, इनका सर्वर डाउन होता है, तो इट इज गोइंग टू हैम्पर व्हाट? इट इज गोइंग टू हैम्पर इंडियाज मार्केट, ना, इंडियाज कॉमर्स मार्केट, और वो भी कौन सा? रिटेल मार्केट. ई कॉमर्स क्या है? प्रीडोमिनेटली डोमिनेटेड बाय रिटेल मार्केट्स. तो इसीलिए डिपेंडेंसी कम करना है, दैट्स व्हाई ओएनडीसी कांसेप्ट हैज बीन पॉप अप. ओके, इट इज इन प्रपोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो we can see the concern the ONDC futures, that एक पॉजिटिव नोट है कि ONDC का फ्यूचर क्या हो सकता है. तो we have seen, see, if you have some factual knowledge, अगर आपके पास कुछ facts and figure है or any like report from any relevant sources, then you can put up those things in your answers. Like see, ONDC aims to raise e-commerce penetration in the next 2 years to 25% of India's consumer purchase. It aims to sign up 900 million buyers and 1.2 million sellers to share network within next 5 years. तो ये सब क्या टारगेट्स, फ्यूचर है ओएनडीसी का, कि कैसे उसको लाइक मोर एंड मोर बायर्स उसमें आए और सेलर्स आए. ओके, और इसको मोर ई कॉमर्स को इंक्लूसिव बनाया जाए. दिस इज द टारगेट ऑफ ओएनडीसी, टू मेक इट मोर इंक्लूसिव. तो ये पार्ट ओएनडीसी का था. अब क्या है कि हाउ इट इज गोइंग टू बीट द अदर ई कॉमर्स जायंट. तो ये सब जब फ्यूचर एस्पेक्ट्स होगा तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बीट अप ना दिस फ्यूचर. एंड व्हाई, व्हाट इज द नीड, द कंसर्न, व्हाई वी नीड टू बीट अप दिस ई कॉमर्स जायंट? ऑब्वियसली आप भी कमेंट कर सकते हैं क्यों हमें जरूरत है, व्हाई वी नीड, क्योंकि इतना ज्यादा ओवर डिपेंडेंसी, सी 82% ओवर डिपेंडेंसी, कुछ भी क्रैश होता है, उनका सर्वर होता है, या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन, जो अभी एट प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, अगर कल की डेट में ये जियोपॉलिटिकल टेंशन यूएसए में हो गया, ओके, एट दैट टाइम आवर प्लेटफॉर्म विल गेट हैम्पर्ड ना. तो ये सब रिस्क को अवॉइड करने के लिए we need to have some alternate e-commerce platform which is India, whose server is located in India, which is India's origin. All right, तो ये सब चीज कंसर्न है, that you can write in your points. After that आप रेज करो कि हाँ कंसर्न है ये, so we need to find out a solution in terms of ONDC, और इसका future aspects ये है, and by this way we can like tackle up this e-commerce monopolistic market.
ओके, इस तरह से मतलब फ्रेम होगा आपका आंसर। एम आई गेट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? और लास्ट में एक स्मार्टली एक कंक्लूजन देना चाहिए, हर आंसर्स में देना चाहिए। कंक्लूजन इज व्हाट? इट इज वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड, इट मे बी सजेशंस, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ सजेशन। ओके, तो आप इसमें सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आपका मतलब इट इज योर ब्रेन चाइल्ड, मतलब चाइल्ड ऑफ योर ब्रेन। ओके, कंक्लूजन इज व्हाट? तो एक कंक्लूजन होना चाहिए। द रोल ऑफ कंपटीशन कमीशन इन ऑफ इंडिया will be crucial in success of ONDC as smaller business with low volume tracks volume lacks the resources to match up the discount offered by heavy weights like Amazon। इसका जो डिस्काउंट है वो स्मॉल बिजनेस तो नहीं कर पाते हैं, उतना डिस्काउंट, हेवी डिस्काउंट नहीं दे पाते। आपने देखा होगा कि यार फ्लिपकार्ट सेल आ गया, अमेजोन सेल आ गया, हेवी डिस्काउंट दे रहे हैं। तो उन सब चीजों को टैकल करने के लिए वी नीड टू हैव सम अल्टरनेट प्लेटफॉर्म like ONDC. Their integration and sustenance could be done only when big players are effectively stopped from indulging in anti-competitive practices. Anti-competitive, अभी क्या कर रहा है ना फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये लोग अपने ही प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं ऑन देयर वेबसाइट। So this is a practice of anti-competitiveness. Okay, means you are launching your product, you are not selling up the seller's product, अपना लॉन्च कर रहे हैं। तो ये सब चीज को टैकल करने के लिए we need to have some platform। Okay, ऐसा आप कंक्लूड कर सकते हैं। देखिए डाटा जो है ना, अगर डाटा आप ज्यादा नहीं भी लिखते हैं ना एग्जामिनेशन में, ओके दीक्षा, और आप उसको लाइक आपका कॉन्सेप्ट उसके आंसर्स को राइटिंग करने में कॉन्सेप्ट आप कॉन्सेप्चुअल पार्ट ज्यादा यूज करते हैं, देन आल्सो यू विल गेट ए गुड मार्क्स। ओके, वो दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग आरबीआई का ऑफिसर आप बनने जा रहे हैं, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि यार 2014 में क्या था इंडिया का, हाउ मच पीपल आर इनरोल इन द बैंकिंग सिस्टम, एंड 2021 में कितने लोग बैंकिंग इंक्लूसिव थे, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूसिव, फाइनेंशियल पेनिट्रेशन कितने लोगों तक था, एंड व्हाट इज द 2024 सितंबर डाटा। These are all rubbish, believe me, these are all rubbish। If you have concept that how the financial inclusion percolated to the bottom up, okay, you need to understand the approach। actually concept होना चाहिए आपके पास, that how, what are the policies, what are the monetary policies, what are the fiscal policies, what are the measures taken by the Indian government that is going to help out the last person of the society, the most disadvantageous section of the society, the vulnerable section of the society, how our financial system is going to, ये concept अगर आपके पास है, and if you have some relevant policies that government has framed out, तो फिर वो चीज आप डालते हैं ना अपने आंसर राइट में, तो इट इज गोइंग टू गिव यू लाइक यू आर गेटिंग एक्सेल मार्क्स, एक्सीलेंट मार्क्स। बिलीव मी, फैक्ट्स एंड फिगर्स का कोई रोल नहीं होता है। फैक्ट्स एंड फिगर्स जो होते हैं ना वो प्रीलिम्स के लिए होते हैं, एंड प्रीलिम्स इज व्हाट? प्रीलिम्स इज ए स्टेज टू डिस्क्वालीफाई यू, लेकिन मेंस इज ए स्टेज टू क्वालिफाई एलिजिबल कैंडिडेट्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट्स। मेंस डिस्क्वालीफाई करने के लिए नहीं है, मेंस है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स है, जो कॉम्पिटिटिव कैंडिडेट्स है, उनको क्वालिफाई करने का प्रोसेस है। ऑलराइट, तो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैज नो रोल, नॉट एट ऑल रोल in your subjective writing। okay, all right, let's see another question number 2। we will see some 5 to 6 questions in today's session, all right, because it is not possible for us to like discuss all the questions, but we will definitely discuss these questions, and we will give you practice questions along with evaluations in our mentorship program and phase 2 program। All right, no worry for that। See question number 2, RBI has allowed pre-sanctioned credit line via UPI। तो यार प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन बाय यूपीआई क्या है? अब जिन बच्चों को पेपर न्यूज़पेपर रीडिंग का आदत नहीं, उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि यार ये यूपीआई तो समझ में आ रहा है, ये क्रेडिट लाइन क्या है, प्री सैंक्शन क्या है। तो आरबीआई हैज अलाउड, और ये दैट वाज इन द न्यूज़। सी एग्जामिनेशन कब हुआ? जुलाई। और सी इन द न्यूज़, आरबीआई अलाउज यूपीआई लिंकिंग द प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइंस। सी इन जुलाई, प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई, हाउ डज दैट वर्क? देख रहे हैं आप कैसे कोरिलेट हो रहा है। इसका सेकंड पार्ट क्या, how is it a step towards financial inclusion? Financial inclusion के लिए कैसे ये like it is going to benefit? See again in news 19th of July, how recent changes in UPI are helping to fill India's credit gap।
ये भी वही है, क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई, प्री अप्रूव्ड प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन यूपीआई। तो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था, सो दे हैव फ्रेम्ड द क्वेश्चन। अब आपको लगेगा कि यार एलियन टाइप क्वेश्चन है ये, हमने तो डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा था, वो हमारे सिलेबस में है, डिजिटल टेक्नोलॉजी इंटरलिंकिंग विद बैंकिंग सर्विसेज, तो ये कैसे आ गया? तो ये कनेक्शन जो है ना, ये कनेक्शन आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस से मिलेगा, ओके, कि क्यों ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। और उसके लिए हमारा सेपरेट सेशन भी है न्यूज़पेपर एनालिसिस का। सी सैंपल आंसर, आई हैव गिवन अ सैंपल आंसर। यूपीआई का छोटा सा डिफिनेशन, यूपीआई है क्या? इट इज अ सिस्टम दैट पावर्स द मल्टीपल बैंक अकाउंट इनटू सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन। आप भी यूपीआई कर रहे हैं, हम लोग सब लोग यूपीआई कर रहे हैं, बाय मर्जिंग सेवरल बैंकिंग फीचर्स, प्रोवाइडिंग सीमलेस ट्रांसफर ऑफ योर मनी फ्रॉम द कस्टमर टू द मर्चेंट। यही है यूपीआई। तो चलो यार, अब क्या है भाई, न्यूज में क्या था? अब ऐसा नहीं कि यूपीआई का फीचर्स लिखने लगे, यूपीआई का प्रॉस लिखने लगे, यूपीआई का कॉन्स लिखने लगे, यूपीआई के बारे में जो गवर्नमेंट का पॉलिसीज आया है नए नए वो लिखने लगे। नहीं पूछा है ये क्वेश्चन, वो नहीं पूछा है कि यूपीआई में अभी जो है ना इनकम टैक्स में ये यूपीआई का ट्रांजेक्शन लिमिट था, वो इट हैज बीन रेज्ड फ्रॉम 1 लाख टू 5 लाख, आप सब लोगों को पता है। अब ये चीज आप डाल दीजिएगा, नहीं पूछा है यार। आप 2 बार क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। एग्जामिनेशन में भी मैं आपको एकदम गोल्डन रूल बता रहा हूँ इन राइटिंग डिस्क्रिप्टिव आंसर्स। 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, अगर समझ में नहीं आ रहा देन ओनली अपीयर द, मतलब ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। उससे क्या होगा ना कि थ्रू आउट द प्रोसेस व्हाइल राइटिंग द आंसर, क्योंकि देखिए टाइप करना है, टाइप करने में क्या होता है ना, कई बार लाइक पेशेंस लूज होता है, ठीक है, बच्चों का, और आउट ऑफ द ट्रैक चले जाते हैं। अगर आपका क्वेश्चन ब्रेन में है, दिमाग में है, 5 बार पढ़ा है, 4 बार पढ़ा है, तो थ्रू आउट द आंसर यू विल स्टिक टू दैट क्वेश्चन, और यही आपको उस ट्रैक में रखेगा। समझ रहे हैं आप बात? तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है। सी we jump to the directly to the question. The pre-sanctioned credit line via UPI is a financial product that allows users to access credit lines from their banks through their UPI account. Credit card carry करने का जरूरत नहीं है. These features allow user to make payment via the QR code and eliminates the need to carry multiple credit cards. UPI के साथ इंटैक्ट कर दिया गया है उनको, है ना? नो नीड टू कैरी, वहीं से आप लाइक क्यूआर कोड से ही स्कैन करके, क्रेडिट कार्ड्स में क्या होता है, दे गिव द आउटस्टैंडिंग लोन टू यू टिल 45 डेज, देते हैं वो लोग कि 45 डेज तक आप इंटरेस्ट फ्री यू विल गेट द लोन, ओके। तो वही चीज अब यूपीआई में आज की डेट में क्या है, आपके पास बैंक में पैसे हैं या फिर यूपीआई वॉलेट में पैसे हैं, देन ओनली यू कैन मेक द पेमेंट। बट अगर ये चीज फैसिलिटी आपके पास है अवेलेबल, देन यू कैन मेक द पेमेंट बाय स्कैनिंग द क्यूआर कोड, और जो कि क्रेडिट स्टेटमेंट में आपका आएगा, यू कैन पे दैट स्टेटमेंट इन आफ्टर 45 डेज, विद इन 45 डेज, ओके। तो ये चीज आपको समझना होगा। अब हम लोग देख रहे हैं क्या है, ये चीज आपने लिख दिया। अब देखिए हाउ इज इट ए स्टेप टुवर्ड द फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में कैसे ये स्टेप, सी बेनिफिट टुवर्ड द फाइनेंशियल, ऑब्वियसली डिजिटलाइजेशन। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, means financial services to the bottom up, financial services percolation to the bottom line of the people, okay, to the bottom line of the society, means at grassroots level, grassroots level पे financial services को पहुंचाना, that is called financial inclusion. Then how it is going to digitalization, you can write this point. Instant credit, users can get instant credit, flexible credit lines based on their registered mobile number. Collateral free, lenders can offer customers instant collateral free loans. वही तो होता है ना, collateral free, after 45 days they only charges the interest rate, okay, in the form of payment. See, integrated financial products, users can access integrated financial products and services via UPI. Regulated lending, it is going to reduce the cost of disbursing and using the credit products for both the banks and the customer. Credit code, तब क्रेडिट कार्ड जनरेट कर रहा है, उसके लिए प्लैटिनम कार्ड, आपको सिल्वर कार्ड मिल रहा है, तो somewhere it is going to curtail the cost of that production na, credit products, okay, enhances the convenience and flexibility in financial transactions. So these are the benefits, and by this way financial inclusion can be like achieved through this pre-sanctioned credit line of UPI, ओके। और आप कंक्लूजन में दे सकते हैं, देखिए रिसेंटली आई हैव टेकन दिस रिपोर्ट कि जुलाई में वी हैव सीन द हाईएस्ट यूपीआई ट्रांजैक्शन, जब से यूपीआई लॉन्च हुआ है ना,
तब से हमने देखा कि इन जुलाई 2024 ओनली वी हैव क्रॉस द मार्क ऑफ 20,000 करोड़, 20.64 थाउजेंड करोड़। ठीक है, इसका मार्क हमने क्रॉस किया था, और ये अगस्त में इट वाज लाइक 20.60 थाउजेंड करोड़, लेकिन जुलाई में इट वाज लाइक मैक्सिमम। तो आप देख सकते हैं कि यूपीआई का क्या पोटेंशियल है। ओके, सी ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन विथ मोर देन 600 बैंक लाइव्स। अब 600 बैंक लाइव क्या है? इतने ज्यादा बैंकिंग सर्विसेज लाइव है इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस यूपीआई ट्रांजैक्शन। एक्सेस टू, कंक्लूजन में एक्सेस टू बैंकिंग, डिजिटल इकोनॉमी, ये सब पार्ट कंक्लूजन का, मतलब आप कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं और वे फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं। It will make the system more cost effective. It is going to make the system more user friendly. Security, obviously security, because we are doing transaction in QR form, and we have like two-step verification process. Interoperability would improve. So these all things are going to give what? It is a way towards the financial inclusion. और इस तरह से आप आंसर को कंक्लूड कीजिएगा with some facts. If you remember, else put the conceptual part. No need to worry. अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है एंड यू हैव फ्रेम्ड योर आंसर ब्यूटीफुली, अगर आंसर्स का जो आप लिख रहे हैं उसमें एक पैराग्राफ से दूसरा पैराग्राफ इंटरलिंक्ड है, ठीक है, टीचर को लग रहा है कि यार चीजें फ्लो में जा रही है, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू गेट द आंसर। और इसमें आप एक डायग्राम बना दीजिए कि हाँ, बेनिफिट्स ऑफ यूपीआई थ्रू प्री सैंक्शन, एक बेनिफिट ऑफ यूपीआई, और एरो डायग्राम बना दिए। वहां पे तो पॉसिबल नहीं होता है, लाइक पेन एंड पेपर का तो एग्जाम नहीं है, तो फिर आप पॉइंट वाइज लिखिए। ईडाई में है पेन एंड पेपर का एग्जाम। ऑलराइट, सी क्वेश्चन नंबर 3, ब्रीफली एक्सप्लेन द रिटेल डायरेक्ट स्कीम फॉर आरबीआई। रिटेल डायरेक्ट स्कीम क्या है? रिटेल डायरेक्ट स्कीम गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ट्रेड करने के लिए रिटेलर्स को दिया है। और रिसेंटली ना हमने देखा कि प्रवाह पोर्टल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऐप, ये सब इस साल का आरबीआई ने लॉन्च किया था इन जून एंड जुलाई। ओके, तो ये सब चीज अगर आपके 2024 में ये क्वेश्चन पूछते हैं तो यू कैन यूज दीज थिंग्स। हियर आरबीआई हैज लॉन्च्ड दिस गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऐप फॉर रिटेल डायरेक्ट इन ऑर्डर टू बूस्ट व्हाट? रिटेल डायरेक्ट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदना है, बेचना है, टू बाय एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन दिस रिटेल डायरेक्ट स्कीम्स। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? 600 वर्ड्स, बहुत इजी क्वेश्चन, 15 मार्क का। सी, let me erase some things. Briefly explain retail direct scheme of RBI. और इसके ऊपर ना आरबीआई का बहुत प्यारा डॉक्यूमेंट है, 4 pages डॉक्यूमेंट इज देयर। आई हैव प्रोवाइडेड दिस लिंक ओवर हियर ओनली, और पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। 4 pages का एक पीडीएफ है। सी हियर, आई हैव प्रोवाइडेड सम, हाँ सी हियर आरबीआई 4 page डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा ना, you will get to know everything about retail direct scheme, RDS, everything. Okay, इसलिए एकदम परेशान नहीं होना, आरबीआई का डॉक्यूमेंट में है। अब देखिए, हमने एक शॉर्ट छोटा सा बनाया है कि आरबीआई इन, क्वेश्चन पूछ रहा है आरडीएस के अराउंड घूमेगा। आरबीआई इन 2021 हैज अनाउंस्ड द आरडीएस स्कीम। सबको पता है यार कि रिटेल डायरेक्ट स्कीम 2021 में अनाउंस हुआ। अंडर दिस स्कीम रिटेल इन्वेस्टर्स, अब इसका स्कीम का मीनिंग बता रहे हैं हम, डिफिनेशन। Under this scheme, retail investors are what? They are non-professional investors, are allowed to open retail direct gilt account. और ये कहाँ पे खुलता है? आरबीआई के अंदर। ओके, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे डायरेक्टली विद द आरबीआई टू बाय एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये एक डिफिनेशन हो गया बस 20 वर्ड्स में। ऑलराइट, रिटेल डायरेक्ट स्कीम के बारे में अब थोड़ा सा बता रहे हैं हम लोग। It is a one-stop solution to facilitate investment in government securities by individual investors. Gilt account, retail direct gilt account can be opened through an online portal provided for the purpose of the scheme. The online portal will also give the registered users the following facilities. क्या-क्या facilities दे रहे हैं? It is going to give the access to the individual investors to maintain the gilt account with the RBI and invest. And this scheme enables investors to buy securities in primary auctions as well as buy and sell securities through NDS OM प्लेटफॉर्म। अब NDS OM प्लेटफॉर्म क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप सेकेंडरी मार्केट में वो ट्रेड कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपने कहा था, यू कैन ट्रेड इन सेकेंडरी मार्केट। ऑलराइट, तो ये चीज ऑनलाइन पोर्टल में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब सी,
आई हैव कलेक्टेड दिस सोर्स फ्रॉम द आरबीआई। ओके, थोड़ा सा आप इस पिक्चर को एनालाइज कीजिए। इसका डिफिनेशन दे दिया, गिल्ट अकाउंट के बारे में दे दिया, पॉकेट ऑफ रिटेल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स दे दिया, 1 bid per security permitted अंडर दिस। ठीक है, हाउ बिडिंग इज गोइंग टू, क्योंकि आप मिनिमम बिड इज 10,000 एंड मैक्सिमम बिड इज 2 crore। तो ये सब क्या है अंडर द आरडीएस स्कीम, दीज थिंग्स आर देयर। अब बेनिफिट्स क्या है उसका आरडीएस का, वो आप दे दीजिए कि हाँ देयर इज अ सोवरेन गारंटी फॉर द फंड्स एंड हेंस जीरो रिस्क टू डिफॉल्ट। गवर्नमेंट से जीरो रिस्क टू डिफॉल्ट, गवर्नमेंट इज द गारंटर ना। Government securities may offer better interest rate than the banking fixed deposit, depending upon the prevailing interest rates. ये सब बेनिफिट है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने का। फीचर्स ऑफ द स्कीम्स, ये कुछ पॉइंट डाल दिए आप कि हाँ मिनिमम इतना एंड द मल्टीपल ऑफ 10,000, मैक्सिमम अप टू 2 crore एंड पेमेंट्स मे बी मेड थ्रू नेट बैंकिंग और यूपीआई। ये सब कुछ फीचर्स डाल दिया आपने। और इंटरमीडियरीज जैसे म्यूचुअल फंड ये सब का जरूरत नहीं। अब इन टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन आरटीएस क्या 4 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ट्रेजरी बिल, स्टेट डेवलपमेंट लोन, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ये सब जो है ना टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। और एक कंक्लूजन लिख दिए कि हाँ आरबीआई हैज डेडिकेटेड द ऐप रिसेंटली। ये सब कंक्लूजन में डाल सकते हैं। ये शो करता है दैट हाउ मच यू आर अवेयर विद द करंट अफेयर्स, आपका अवेयरनेस। ओके, दैट हाउ मच यू आर लाइक कितना आप ये है करंट अफेयर्स के साथ इंटैक्ट। सी इन द मंथ ऑफ मे आरबीआई लॉन्चेस गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऐप प्रवाह पोर्टल, ठीक है, और ये जीसैक ऐप है, इट इज फॉर आरडीएस ओनली। ऑलराइट, समझ में आ रहा चीजें कैसे करना है हम लोगों को, हाउ टू लाइक टैकल दिस सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इस अप्रोच को फॉलो कीजिएगा। बिलीव मी, कोई भी क्वेश्चन आए, किसी तरह का भी क्वेश्चन आए, यू आर गोइंग टू आंसर, you will definitely going to answer a good answer। आंसर तो सब देंगे यार, एक बट अच्छा होना चाहिए, आंसर इंपैक्टफुल होना चाहिए कि टीचर को लगे हाँ आई गॉट ए गुड आंसर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, आई गॉट ए, मतलब इतना इवैल्यूएशन के बाद आई एम गेटिंग ए गुड आंसर। ओके, सी व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन। अब मैनेजमेंट का पार्ट हम लोग पहले क्या करते हैं, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे, देन फिर ईएसआई डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी, ये एक थिंकर है मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट के लिए there are lots of sources, you can like refer public administration of books of M Lakshmikant, बहुत अच्छा सोर्स है। लेकिन इतना बल्कि बुक है ना, we have already covered the management part very concisely, briefly, important things were covered। आप उसको भी कीजिएगा, you are going to answer a good question। okay, answer the questions very like Henry Fayol, direct question है, Henry Fayol in field of management contribution and explain the 14 principle of management। Henry Fayol, he recognizes that management is a continuous process। okay, Fayol wrote about the motivating people by inspiring initiative, commanding respect through the values and ensuring that people have time। तो हेनरी फ्योल ने क्या किया था, these are the major contribution। you need to identify the 4 function of the management। management में 4 function जो है ना, planning, organizing, directing, controlling, ये need to understand, तभी कोई organization sustain करेगा। ओके, मैनेजमेंट में प्लानिंग अगर रहेगा, ऑर्गेनाइजिंग द थिंग्स, डायरेक्टिंग, डायरेक्शन टू हुम, टॉप टू डाउन अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच, हायरार्किकल डायरेक्शन होता है, यूनिटी ऑफ कमांड होता है। तो दीज एक्चुअली थिंग्स वे आर आइडेंटिफाइड बाय द हेनरी फ्योल। सेकंड कंट्रीब्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। ऐसा नहीं कि सारा एक्टिविटीज एक ही पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन, सबके लिए क्लासिफाई मींस क्या, डिवीजन ऑफ लेबर इज देयर। ओके, टेक्निकल एक्टिविटीज, कमर्शियल एक्टिविटीज, सबको डिफरेंशिएट करो ऑर्गेनाइजेशन में, देन ओनली ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू परफॉर्म वेरी इफेक्टिवली। क्वालिटी ऑफ मैनेजर्स क्या होना चाहिए, एंड द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय द फ्योल। सो दीज आर द 14 प्रिंसिपल्स, यू कैन लुक। ये चीज हमने स्क्रीनशॉट लिया है फ्रॉम आवर C4S मैनेजमेंट को मैनेजमेंट लेक्चर। ओके, इसी तरह से हम लोग मैनेजमेंट का नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड सी हियर the principle of management, stability of tenure। tenure का किसका, जो वर्कर्स है उनका tenure stability होना चाहिए अच्छा ऑर्गेनाइजेशन रन करने के लिए। इनिशिएटिव शुड बी देयर, स्पिरिट डी कॉप्स मींस टीम स्पिरिट वुड बी देयर। डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ना, सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डिसेंट्रलाइज, कोई भी किसी को भी दे रहा है, लाइक ऑर्डर दे रहा है। स्केलर चेन मींस फ्लो जो होना चाहिए, इट शुड बी हॉरिजॉन्टल बेस्ड। ओके, टॉप टू डाउन अप्रोच। ऑर्डर फॉर्म में होना चाहिए। इक्विटी,
Subordination of individual interest means individual interest should not prevail over the company's interest. It should not prevail over the organization interest. These are the unity of directions, unity of command, remunerations, proper incentive-based approach should be, and discipline should be maintained, model code of conduct of organization should be maintained, है ना? Authority, then division of labor जो हमने डिस्कस किया कि हाँ यार सभी टेक्निकल टीम एक्सपर्ट्स अलग होना चाहिए, फ्लोर मैनेजमेंट अलग होना चाहिए, तो डिवीजन ऑफ लेबर शुड बी देयर। तो इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो बहुत अच्छा मार्क्स। एक कंक्लूजन छोटा सा लिख दिया, दिस प्रिंसिपल आर स्टिल रिलेवेंट टुडे and managers across the domains from small businesses to large corporation uses them. This Henry Fayol's 14 principle of management. Okay, तो आपका आंसर बहुत अच्छा, यही पूछ रहा है यार 15 मार्क्स में ना, अगर आप इस तरह टैकल करते हैं, इसको भी वेटेज दिया हमने और 14 प्रिंसिपल को भी। अब आपको दिख गया हेनरी फ्योल 14 प्रिंसिपल लाइन से लिख दिया, तो आपने 7.5 मार्क्स का क्वेश्चन अटेंड किया ना। You have left out the 7.5 marks, so obviously you will get less than 7.7 marks, उससे तो कहीं मार्क्स मिलेगा। इसीलिए दोनों पार्ट को इक्वली वी नीड टू गिव द वेटेज टू कवर बोथ द पार्ट्स। ठीक है, अनदर क्वेश्चन 2023 का सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस द बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनालिटी। 600 कितना डायरेक्ट क्वेश्चन मैनेजमेंट का ना, मैनेजमेंट इट इज लाइक 10 आवर्स, 10 घंटे इज सफिशिएंट। 10 आवर्स का लेक्चर है, 10 आवर्स यू विल टेक टू रीड आउट द पीडीएफ, 20 आवर्स है मैनेजमेंट खत्म, और आपको बहुत अच्छा स्कोर देने वाला है मैनेजमेंट। ओके, सी बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स आल्सो नोन एज ओशियन ट्रेट्स, ये इसी का क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। O फॉर ओपननेस, C फॉर कॉन्शियसनेस, E फॉर एक्सट्रावेशन, A फॉर एग्रीएबलनेस एंड N फॉर न्यूरोसिज्म। तो ये इसका एक कंपैरेटिव स्टडी है, इस तरह का हम लोगों का नोट्स में प्रोवाइड किया। ओपननेस क्या है, ओपन होना चाहिए, क्यूरियस होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, कॉन्शियसनेस होना चाहिए, ही शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, कॉन्शियसनेस होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड, रिलायबल होना चाहिए इंफॉर्मेशन, वो पर्सन एक्सट्रावेशन होना चाहिए, इट शुड नॉट बी इंट्रोवर्ट, है ना, इंट्रोवर्ट नहीं होना चाहिए पर्सन। ये पर्सनैलिटी बता रहा किसका, लोगों का, कि पर्सनैलिटी कैसा होना चाहिए। एग्रीएबलनेस होना चाहिए कि हाँ काइंड है, एम्पैथेटिक है, एग्री कर रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन ले रहा है उसके ऊपर एग्री कर रहा है ये बंदा, है ना, हमेशा डिसेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा। इफ ही हैज सम गुड सजेशन देन ही कैन पुट फॉरवर्ड, बट डिसेंट नहीं क्रिएट कर रहा है, ऐसा नहीं कि एजिटेशन कर रहा है और यूनियन बना के एजिटेट कर रहा है अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन। और न्यूरोसिज्म मींस स्ट्रेट और स्ट्रेस्ड है या एंग्जियस है, ये चीज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इमोशनल सेंसिटिव, मींस इट इज टॉकिंग अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए उसमें। इमोशनल इंटेलिजेंस टॉपिक है ना इथिक्स में, यूपीएससी में है ये पार्ट, कि इमोशनली शुड बी इंटेलिजेंस। ओके, कि वो ब्रेकअप नहीं हो जाए, कुछ सिचुएशन, बड़ा सिचुएशन आ जाए तो वो टैकल करे सिचुएशन, ब्रेक देम। तो हमने एक यहाँ पे कंपैरेटिव दे दिया है, कॉन्शियसनेस वर्सेस लैक ऑफ डायरेक्शन। इसका कि कॉन्शियस जो होते हैं लोग और जिसके डायरेक्शनलेस लोग होते हैं विथ लो स्कोर इन कॉन्शियसनेस, उनका कैसा होता है अप्रोच। इम्पल्स वो मतलब दे आर गोइंग टू फेल इन द टू अचीव द फाइनल। एग्रीएबलनेस एंड एंटागोनिज्म, ओके, एक्सट्रावेशन एंड इंट्रोवर्जन, openness and closeness to experiences, and the last neuroticism and emotional stability। तो 5 ट्रेट प्रिंसिपल को हमने कंपेयर भी किया है, तो इस तरह का कंपैरेटिव चीज होगा ना तो आंसर खुद ब खुद ब्यूटीफाई हो जाएगा। एंड व्हाट इज द आउटकम, आउटकम क्या होगा अगर वी हैव फॉलोड दिस 5 ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी प्रॉपरली और सब में स्कोर हमने पॉजिटिव किया, ओके, देन व्हाट वुड बी द आउटकम। It will have a different impact over the relationship, family life, health, obviously, education, your work life. It is going to impact it positively. ये outcome, ये आप छोटे-छोटे examples के साथ आप दे सकते हैं, and we can have some critical evaluation इसका part, कि ये theory का एक critical evaluation के part में कि हाँ यार कुछ कमी है यहाँ पे। We cannot like rely कि 5 big principle follow कर लिया तो यार हो गया। नो, ये चीज जो है ना, जो 5 प्रिंसिपल दिया है, इट इज समवॉट इम्पैक्टेड बाय द इन्वायरमेंट आल्सो। जेनेटिक भी होता है चीजें, इन्वायरमेंट से भी वो होता है,
it is going to like impact over the like traits of the personality, है ना. लोगों का personality जो है ना, it is modified by the situation, environment, and cross cultural validity is there. Okay. तो हम लोग ऐसा नहीं हो सकता है कि ये बहुत ही मतलब 5 प्रिंसिपल जो है ये एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव है एंड दिस इज लाइक एंड. नो, इट हैज सम क्रिटिकल पार्ट. तो आप इस तरह से अगर क्रिटिकल इवैल्यूएशन पुट ऑन करते हैं, ओके, सी हियर स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रेड, ये तो इटसेल्फ एक क्वेश्चन ना. ट्रेड आपने कह दिया, बट ओवरऑल एग्रीएबलनेस एंड कॉन्शियसनेस इंक्रीजेस विद एज. एज की मैच्योरिटी के साथ वो सब चीजें आती है. इमेच्योर पर्सन हर बात पे एग्री नहीं होता है. दे गॉट टू डिसाइड. कॉन्शियसनेस इट केम्स विद मैच्योरिटी. ओके, तो ये सब चीज जो है यू कैन इंडक्ट इन योर क्रिटिकल इवैल्यूएशन पार्ट. ठीक है. और सिमिलरली द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट एंड हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड इन योर ऑर्गेनाइजेशन. कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, देखिए स्क्रीनशॉट फ्रॉम आवर नोट्स. कोड ऑफ कंडक्ट इज मोर डिटेल्ड वर्जन ऑफ द रूल बुक. वही है कोड ऑफ कंडक्ट. इट हेल्प्स एम्प्लॉय टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली हाउ दे शुड एक्ट इन डिफरेंट सिचुएशन एट वर्क. तो कोई भी कंपनी है उसका एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है. हमने देखा है ना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी होता है ड्यूरिंग द इलेक्शन. we have recently seen लोकसभा इलेक्शन, और उसमें एमसीसी जो है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये एमसीसी लेके आता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. ये सब प्रैक्टिसेस आपको अवॉइड करना है, ये सब चीज नहीं करना है, और ये सब चीज ही आपको करना है. ओके, तो सिमिलरली कंपनी हैव देयर कोड ऑफ कंडक्ट, और जिसको एम्प्लॉयर्स को दे नीड टू फॉलो दैट कोड ऑफ कंडक्ट. ओके, कि do not share the confidential information to the unauthorized persons, unauthorized individuals. Then avoid discriminatory behavior. You should not discriminate people on the basis of language, caste, color, creed, sex. Discrimination नहीं होना चाहिए. Okay, and if there is any like harassment to any employee, female employee or male employee, it should be reported or it should be tackled very smartly. तो ये सब कोड ऑफ कंडक्ट में होना चाहिए कंपनी का. ओके, सो दैट ए बेटर वर्किंग प्लेस वुड बी क्रिएटेड. और हमने देखा था आफ्टर द निर्भया का जो ये हुआ था मिस हैपनिंग जो दिल्ली में हुआ था, उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारा लाइक रेगुलेशंस लाया था फॉर सेफ्टी ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस. आपने देखा है ना, सेफ्टी ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस. ये भी एक एक्ट पास हुआ गवर्नमेंट का इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फीमेल वर्कर्स, फीमेल स्टाफ. तो ये सब चीज भी आप डाल सकते हैं कि हाँ, एक एग्जांपल के साथ कि हाँ यार ये चीज, और सबको पता है यार निर्भया कांड, सबको पता है, एवरीवन इज अवेयर. वो एग्जांपल के साथ, और उसके बाद जो गवर्नमेंट ने वीमेंस के लिए लिया है सेफ्टी पर्पसेस, यू कैन पुट ऑन दीज थिंग्स, है ना. तो इस तरह से आप कोड ऑफ कंडक्ट थोड़ा सा डेफिनेशन लिख दीजिए. Quality code of conduct can foster the employee retention and loyalty. Obviously, employee is going to retain, and they will become more loyal to an organization. मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट में क्या पढ़ना है, समझिए इस चीज को. मैनेजमेंट क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्यों ये आरबीआई के सिलेबस में? बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट इंडक्टेड इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन, इनटू ए रेगुलेटरी बॉडी. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जा रहे हैं. ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू मैनेज दिस ऑर्गेनाइजेशन. कल के डेट में आप अच्छे पोजीशन पे जाइएगा, यू विल गेट प्रमोशन टू सीनियर ऑफिसर रैंक्स. तो आपको समझना होगा कि हाउ टू मैनेज आवर लाइक कलीग्स, our peer groups, our juniors, how to manage the organization to make so that it will give more outcomes. Okay, इसलिए मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं. तो यहाँ पे हम लोगों को कंपनी के रिस्पेक्ट में, ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में, या आरबीआई के रिस्पेक्ट में, या किसी भी बॉडी के रिस्पेक्ट में आप लिख सकते हैं आंसर. ठीक है. The importance of code of conduct over here. क्या इंपॉर्टेंस है इसका? आउटलाइंस द कंपनीज प्रिंसिपल एंड वैल्यूज, प्रोवाइड गाइडलाइंस टू एम्प्लॉय बिहेवियर, है ना. गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये नहीं करना है, वो करना है, वो नहीं करना है, ये करना है. इंक्रीजेस द एम्प्लॉय मोरल सपोर्ट बूस्ट अप होगा ना यार. ऑब्वियस है, देयर इज ए प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट. इट शुड नॉट बी इन डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर. डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए within the employee, within the staffs. Okay, means everyone should get equal weightage on the basis of their caliber, है ना. तो उसी से तो मोरल बूस्ट अप होगा लोगों का, एम्प्लॉय का. इंश्योर कंप्लायंसेस विद द लीगल सिस्टम. लीगल बैकिंग होना चाहिए. इफ एनी हरासमेंट ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ लाइक
मिस हैपनिंग्स हैपन, और सपोज कैजुअलिटी ही हो गया, कंपनी में काम कर रहा है और किसी के साथ कैजुअलिटी हो गया, तो उस टाइम में क्या एक लीगल सिस्टम होना चाहिए इन ऑर्डर टू लाइक प्रोवाइड सपोर्ट टू दैट फैमिली। ठीक है, तो ये सब चीज कोड ऑफ कंडक्ट में होता है। दीज आर द इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एन कंपनी। ओके, टाइप ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, दीज आर सर्टेन टाइप ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट जो कि आप यू कैन पुट ऑन योर इनटू योर आंसर। ऑलराइट, सो हमने हमने देखा फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का पार्ट। अब लेट्स सी 2022 का ब्रीफली वी विल सी द फाइनेंस एंड मैनेजमेंट पार्ट। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट पार्ट पहले करेंगे, जून में एग्जाम हुआ था। एंड सी द फर्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग टर्म रेपो रेट ऑपरेशंस, डायरेक्ट क्वेश्चन फाइनेंस से। हमने ये क्वेश्चन को आराम से आपका पीडीएफ का नोट्स में भी है, स्टैटिक क्वेश्चन जो कवर किया और क्लास में डिस्कस हुआ है, लॉन्ग टर्म रेपो क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा भाई, देखो न्यूज में था जुलाई में, देखो इट वाज देयर इन द न्यूज। तो ये हमेशा न्यूज में रहता है, रेपो ऑपरेशंस तो हमेशा रहता है। और बैंक्स में जब लिक्विडिटी का फ्लो बढ़ाना है तभी तो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन आता है। ये क्या है, एक प्रोसेस है इन ऑर्डर टू पंप मोर मनी इनटू द बैंकिंग सिस्टम, ये ना प्रोसेस है। एंड व्हाई इट इज लॉन्ग टर्म, बिकॉज रेपो ऑपरेशन इज व्हाट, शॉर्ट टर्म प्रोसेस। लॉन्ग टर्म 1 ईयर to 3 ईयर, ये इसका फीचर है लॉन्ग टर्म रेपो रेट का, है ना। तो ये सब चीज जब रहेगा आपका तो फिर आपको थोड़ा आइडिया है लॉन्ग टर्म रेपो रेट। ठीक है भाई, लॉन्ग टर्म रेपो रेट एलटीआरओ में क्या होता है, मिनिमम बिड। चलो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मिनिमम बिड हम लोगों का 1 करोड़ और इसके मल्टीपल में होना चाहिए। ओके, बिडिंग जो बैंक्स करते हैं आरबीआई के पास वो 1 करोड़ इट्स मनी। अब इसका भाई अब लिख रहे हैं व्हाट आर लॉन्ग टर्म, अब ये 10 मार्कर है तो 400 वर्ड्स में लिखना है आपको। तो कुछ बेनिफिट्स बताते हैं हम लोग कि how it is going to benefit the how long term repo rate operation is going to benefit in financial inclusion। ओके, बैंकिंग सिस्टम के लिए तो बेनिफिट है ही कि वहां पे लिक्विडिटी बढ़ा रहा है बैंकिंग को, तो हाँ आप ये भी अप्रोच कर सकते हैं। ओके, लेट मी इरेज दिस थिंग्स। ये क्या होता है ना, आंसर राइटिंग जो है ना एक प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस में रहिएगा ना कोई जरूरत नहीं है आपको किसी भी मेंटर का। ठीक है, आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए आपको कि किस फ्लो में जानी चाहिए चीजें, और प्रैक्टिस। आप देखिए, आप लिख सकते हैं कि हाँ हाउ LTRO इज गोइंग टू इम्पैक्ट द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। पहला में डाल दिया बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग कैसे लिक्विडिटी बूस्ट करेगा। ठीक है, लिक्विडिटी अगर बूस्ट होगा तो इन्वेस्टमेंट इसका बूस्ट होगा, यहाँ से लिक्विडिटी बूस्ट होगा तो MSME सेक्टर्स और जो स्मॉल बिजनेसेस है उनको फाइनेंस मिलेगा एट लोअर इंटरेस्ट रेट, है ना। तो ये हो गया। फिर और इससे क्या होगा बेनिफिट कि हाँ यार चलो कॉस्ट ऑफ फंड जो है बैंक का वो रिड्यूस हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू बूस्ट इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज गोइंग टू बी। तो इन्वेस्टमेंट जब बढ़ रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हो रहे हैं बाय प्राइवेट प्लेयर्स और पब्लिक प्लेयर्स। ओके, तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू परकुलेट टू द बॉटम ऑफ द सोसाइटी ना, बॉटम ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो ये जो है ना ये चीज जो है, ये चीज आपको आंसर में एज देगा। ठीक है, LTRO इस तरह से आप आंसर कीजिए कि यार बैंकिंग सिस्टम को कैसे ये बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये पॉइंट वाइज में आप लिख सकते हैं कि हाँ इट इज गोइंग टू बूस्ट अप द लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। ओके, it is going to reduce the cost of fund of the banks, investment part it is going to boost, uh, means making the bank liquidity more durable, liquidity durability will increase, and the obviously the credit flow will increase to the MSMEs and other small sectors। okay, that means farmers को भी, farmer communities को भी पैसे मिलेंगे। ठीक है, एट लोअर इंटरेस्ट रेट, बैंक में लिक्विडिटी रहेगा तभी तो देयर आर नंबर ऑफ बेनिफिट्स। तो LTRO को इस तरह से आप डील कर सकते हैं। ऑलराइट, क्योंकि अभी इस क्वेश्चन में ना मतलब बेनिफिट्स तो सिर्फ नहीं पूछा है, ये पूछा है व्हाट आर LTROs। तो बेनिफिट्स दिया, थोड़ा सा आप इस पे ये भी दे सकते हैं, क्या इसका कॉन्स भी दे सकते हैं। प्रॉस तो दे दिया, अब कॉन्स में क्या देंगे आप सोचिए, क्या देंगे। बैंक के पास लिक्विडिटी है, अब बैंक क्या कर रहा है, लिक्विडिटी को डिसबर्स कर रहा है, किन को, लोगों को,
MSMEs को, स्मॉल ट्रेडर्स को, तो फिर एनपीए का भी तो पॉसिबिलिटी बढ़ सकता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो लेंडर्स हैं, जो सॉरी बोरोवर्स हैं, दे मे गेट डिफॉल्टेड। तो दीज आर द कॉन्स। तो ये आप बैठ के सोचिएगा ना, यू विल फाइंड आउट द कॉन्स। ओके, और इस तरह से यू नीड टू आंसर योर क्वेश्चन इन बैलेंस्ड फॉर्म, बैलेंस्ड फॉर्म। ओके, तो फिर और लास्ट में क्या दीजिए आप, कंक्लूजन दीजिए, एक स्मार्ट कंक्लूजन देना है, एक स्मार्टली कंक्लूड कर दिए कि LTRO is going to benefit, how it is going to benefit, but we should put some checklist in order to check the whether the loans provided by the banks are going to get defaulted or not. क्योंकि देखिए गवर्नमेंट जो है ना नंबर ऑफ रेगुलेशंस लेके आया इन ऑर्डर टू क्लियर द एनपीएस ऑफ द बैंक। आपने देखा था ना, डेट ARCs, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल was there, ARC is there, IBC, मिशन इंद्रधनुष, ये सब नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स were put on by the government। तो ये सब चीज को लिख के आप कंक्लूड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये सब चीज कैसे दिमाग में रोल आउट, मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अगर प्रोसेस में रहिएगा ना तो फिर और लिखते रहिएगा, प्रैक्टिस कीजिए, एक क्वेश्चन कीजिए लेकिन कीजिए, डेली कीजिए, खुद ब खुद वहां पे टाइप, खुद ब खुद, बिलीव मी, खुद ब खुद। लेट्स सी ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन 2022 में पूछा, क्या है क्वेश्चन, डिस्क्राइब इंडियाज रिस्पांस इन 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। आप बोलिए यार 2008 का क्वेश्चन पूछ दिया 2022 में, तो नो, समझिए आप, वेयर यू आर गोइंग टू सर्व, यू आर गोइंग टू सर्व RBI। ओके, तो आपको समझना होगा दैट what are the monetary policies that government has took up, what are the fiscal policies, okay, that government has put into place, what are the monetary policies that RBI has took into place in order to tackle this global financial crisis। तभी तो अगर ऐसा पॉसिबिलिटी फिर से क्रिएट होता है फ्यूचर में, then only you can put on some like useful suggestions to your organization। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑलराइट, तो क्या क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इंडियाज रिस्पॉन्सिव। तो सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है, मींस दे आर नॉट आस्किंग अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। कोई मतलब नहीं है कि यू आर गोइंग टू राइट ओ लेमन ब्रदर क्रैश कर गया था यूएसए में ऑल बिकॉज ऑफ द हाउसिंग लोन्स, है ना, वो सब लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इंडियाज रिस्पॉन्स। 10 मार्कर है, 20 मार्कर, 50 मार्कर क्वेश्चन नहीं है, तो पॉइंट टू पॉइंट 40 वर्ड्स में लिखना है। अब कैसे टैकल करना है यार, चलो हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा स्पेस तो नहीं दिया मैंने, चलो यहीं पे समझते हैं। लेट मी इरेज दिस थिंग्स। ओके, ऑलराइट, सी, तो इंडिया का रिस्पांस, तो इंडिया का रिस्पांस हम लोग बाइफरकेट कर सकते हैं। मॉनेटरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या बनाया था गवर्नमेंट ने, फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट का जो फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी बाय RBI, क्या लिया था इन ऑर्डर टू टैकल दिस एंड अदर मेजर्स, बाकी मेजर्स क्या लिए, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में RBI क्या करेगा बताइए आप, SLR को रिड्यूस करेगा। क्यों, क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ाना है, लिक्विडिटी क्रंच हो गया है मार्केट में, सो इट इज गोइंग टू रिड्यूस द SLR, इट इज गोइंग टू रिड्यूस द CRR। ओके, इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेगा, इट इज गोइंग टू पंप मोर मनी टू द बैंक, मींस रेपो रेट रिड्यूस करेगा, है ना, मींस फंडिंग बैंक, ताकि बैंक के पास मनी हो। अगर बैंक के पास पैसे होंगे देन इट इज गोइंग टू लेंड ना वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और स्मॉल बिजनेसेस, और वीकर सेक्शन स्मॉल MSMEs को ये अगर फंड करेगा तभी तो गवर्नमेंट जो इकोनॉमी है इट विल गेट बैक इनटू द ट्रैक। समझ रहे हैं, तो ये सब मॉनेटरी पॉलिसीज अडॉप्ट किया था RBI ने, और इसने और बैंक्स के पास पैसा होगा तभी तो बैंक जो है ना फार्म लोन को भी, फार्म लोन्स जो है वो एट लो इंटरेस्ट रेट, लो इंटरेस्ट रेट पे फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आप ये सब पॉइंट्स को नोट डाउन भी कर सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी क्योंकि मैं बहुत कुछ बोल दे रहा हूँ फुल फ्लो में, अभी लिखने लगूंगा सब कुछ तो बहुत लंबा हो जाएगा सेशन। अब फिस्कल पॉलिसी में देखिए, फिस्कल पॉलिसी में क्या किया भाई गवर्नमेंट ने, क्या फिस्कल पॉलिसी लेके आया, क्या मेजर्स लेके आया इन ऑर्डर टू टैकल द सिचुएशन। तो
पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ाया गवर्नमेंट, पब्लिक स्पेंडिंग, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया गवर्नमेंट, पब्लिक स्पेंडिंग, कैपिटल कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स को कट किया, इनकम टैक्स जो रेट था वो कट किया ताकि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर वो बढ़े नहीं, ठीक है। एक्सपोर्ट सपोर्टिंग पॉलिसी लेके आया इन ऑर्डर टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स, ताकि हमारा बीओपी जो है वो पॉजिटिव हो सके, इंप्रूव कर सके, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ओके। दीज आर द फिस्कल मेजर्स दैट गवर्नमेंट हैज टूकन एट पॉलिसी लेवल, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव। अब भाई गवर्नमेंट का इनिशिएटिव अदर मेजर्स, अदर मेजर्स में क्या क्या हो सकता है आप सोचिए, अभी हमने डिस्कस किया अदर मेजर्स, उस टाइम क्या क्या था गवर्नमेंट। उसके बाद एक ऐसा सिचुएशन आया था ना, इंडिया तो बहुत इम्पैक्ट नहीं हुआ था, इंडिया बहुत ही स्मार्टली टैकल दिस सिचुएशन। तो फिर अदर मेजर्स में आप लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या लेके आया, लाइक डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, ठीक है, एनपीए को रिड्यूस करने के लिए 2013 में लेके आया। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, 5:25 रूल, पता है ना 5:25 रूल, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को रीस्ट्रक्चर करते हैं। 5:25 रूल गवर्नमेंट लेके आया। गवर्नमेंट क्या लेके आया, मिशन इंद्रधनुष लेके आया फॉर बैंकिंग सिस्टम टू क्लीन अप द बैंक, मिशन इंद्रधनुष 2015 में, ठीक है। फिर क्या है, ज्वाइंट लेंडर प्लेटफॉर्म, ज्वाइंट लेंडर फोरम लेके आया है, JLF होता है, ज्वाइंट लेंडर फोरम, 2014 में लाया था, आई थिंक यू कैन चेक इट, ज्वाइंट लेंडर फोरम। इसमें क्या था कि भाई एक बैंक का लोन जो है ना, वो दूसरे बैंक का लोन चुकाने के लिए नहीं लेना, मतलब एक बैंक से आप ले रहे हैं लोन और दूसरे बैंक में, तो फिर इंफॉर्मेशन शुड बी एक्सचेंज्ड, ओके, ये चीज होना चाहिए। तो ये IBC आया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, बहुत फेमस 2016 का, ठीक है। तो ये सब चीज जो है ना आया, जो गवर्नमेंट का मेजर्स। तो इस तरह से आप अगर आंसर लिखिएगा इतना डाइवर्सिफाई करके, तो व्हाई नॉट दे आर कंपेल्ड टू गिव यू मोर देन 7 मार्क्स, 7 to 8 मार्क्स के बीच में आपको आना ही आना है, और आपका सब्जेक्टिव बहुत अच्छा होगा आरबीआई, ठीक है। ये अप्रोच आप फॉलो कीजिए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विल ब्लॉकचेन डिसरप्ट बैंकिंग। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमेशा से, और उस टाइम क्या था ना, क्रिप्टो करेंसी वाला बात चल रहा था, और क्रिप्टो करेंसी इज बेस्ड ऑन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ये इस पे क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, 15 मार्कर से 600 वर्ड्स। तो इज इट गोइंग टू डिसरप्ट द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, ये चीज हम लोग देख रहे हैं। लेट्स सी, ये देखिए, इट वाज देयर इन द न्यूज़, मे में था न्यूज़ में, अंडरस्टैंडिंग द इरिट्रियम मर्जर, उस टाइम एक्सप्लेन हाउ बजट 2022 अनाउंसमेंट अफेक्ट्स योर अर्निंग फ्रॉम क्रिप्टो, बजट 2022 में इट वाज देयर इन द न्यूज़। तो इसीलिए इसने फ्रेम किया। तो इसमें हम लोग क्या समझ सकते हैं कि पहले क्वेश्चन पढ़ लिए, 2 बार 3 बार पढ़ लिए, चलो यार क्वेश्चन हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे उसका सॉल्यूशन में, आंसर में, आंसर तो कुछ फ्रेम नहीं है, चलो फिर भी हम लोग ट्राई टू सॉल्व दिस आंसर, कि क्या लिख सकते हैं हम लोग। blockchain technology, how it is going to disrupt the, means negatively they are asking framing question in negative with negative connotation, that how it is going to disrupt the banking system। तो हम लोग चलो लिखते हैं कि हाँ यार, ब्लॉकचेन जो है ना, ब्लॉकचेन आने के बाद देयर शुड बी लाइक, जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में अगर लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में लिखते हैं, तो क्लियरिंग जो सेंट्रल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का है, सेंट्रल क्लियरिंग हाउसेस जो है इंडिया का, उसका रिक्वायरमेंट ही खत्म हो जाएगा, है ना, ब्लॉकचेन आने के बाद। फिर पेमेंट एंड मॉनेटरी में भी यही होगा चेंजेस, पेमेंट एंड मॉनेटरी सेटलमेंट्स में। ट्रेड एंड मर्चेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वो बहुत ऑटोमेटेड हो जाएगा, बैंकिंग को हटा दिया जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, इट विल बी ऑटोमेटेड। प्राइवेसी इशू, प्राइवेसी, क्योंकि क्या है ना, ये सब क्रिप्टो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ना बहुत ही सिक्योर्ड नेटवर्क है, ओके। तो फिर प्राइवेसी बहुत ज्यादा रहेगा, उससे क्या होगा ना, गवर्नमेंट के पास डेटा नहीं मिलेगा, एग्जैक्टली डेटा नहीं मिल पाएगा कई बार, और उनके पास डेटा अगर नहीं होगा तो फिर हाउ कुड दे फ्रेम ए
राइट पॉलिसी। तो ये सब कुछ नेगेटिव है, लेकिन कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी तो है ब्लॉकचेन का ओवर द बैंकिंग सिस्टम। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है ब्लॉकचेन? ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन क्या होगा? फास्ट हो जाएगा, है ना। कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। सिक्योरिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा, इनहैंस सिक्योरिटी होगा। क्रिप्टोग्राफिक प्रोटेक्शन मिलेगा, क्रिप्टो बेस्ड प्रोटेक्शन मिलेगा, सब कुछ कोडेड फॉर्म में रहेगा प्रोटेक्शन। रियल टाइम बेसिस इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको। तो दीज आर सर्टेन बेनिफिट्स ऑफ द ब्लॉकचेन इन बैंकिंग सिस्टम। तो इस तरह से आप लाइक बैलेंस के साथ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, मैनेजमेंट का 2022 का क्वेश्चन है ये। तो आइडेंटिफाई द बैरियर्स ऑफ इम्पर्सनल एंड इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन आर रेजिस्टेंट टू चेंज। ओके, ये सब टॉपिक जो है ना आपका मैनेजमेंट का नोट्स में दिया हुआ है, जस्ट गो थ्रू दैट। डिस्क्राइब द मर्जर्स रोल इन इनकरेजिंग द एथिकल बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज हो गया। चलो अब हम लोग 21 का फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का छोटा सा देखते हैं, बस इसको डिस्कस नहीं करेंगे। 21 में देखिए मई में एग्जाम हुआ था और कितना इजी क्वेश्चन आया है फाइनेंस पार्ट। 5 अनाउंसमेंट ऑफ यूनियन बजट 21। तो इस बार जो है पूछ सकते हैं वो कि 9 प्रायोरिटीज डिस्कस्ड इन बजट 2024। 9 प्रायोरिटीज आर देयर ना बजट 2024 में, ये क्वेश्चन एक फ्रेम हो सकता है। डिस्कस सिडबी जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसके बारे में डिस्कस करना है, 15 मार्क्स। व्हाट आर बेसल नॉर्म्स? डिस्कस मेजर पिलर ऑफ बेसल 3। तो बेसल 3 का 3 पिलर्स है ना, हम लोग सबको पता है। पहला पिलर में क्या होता है? कैपिटल एडुकेशन रेशियो मेंटेन करना है मिनिमम। सेकंड पिलर में क्या है? सुपरवाइजरी रिव्यू शुड बी देयर, सुपरवाइजरी रिव्यू शुड बी देयर, सेकंड पिलर। थर्ड पिलर क्या है कि मार्केट डिसिप्लिन होना चाहिए। सॉरी, मार्केट डिसिप्लिन। इस तरह से आप इजीली जो है ना नोट्स में बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन और डायरेक्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर्स उस टाइम, ठीक है, डायरेक्टली आप वो नोट से उठा के दे दिया है, मतलब जो आपका मटेरियल होगा। मैनेजमेंट का पार्ट, बिहेवियरल रीइंफोर्समेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट, ये सब जो क्लास में कवर किया गया है उसका स्क्रीनशॉट है कि पॉजिटिव क्या होगा उसका, नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव इंपैक्ट, नेगेटिव कैसे होगा। पॉजिटिव, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इन्वॉल्व्स एडिंग ए फेवरेबल स्टिमुलस टू इनकरेज डिजायर्ड बिहेवियर टू बी रिपीटेड। नेगेटिव में क्या है? नेगेटिव कुछ नहीं करें, ऐसे लेजीनेस की तरह पड़े हुए हैं, है ना। तो दिस इज नेगेटिव पार्ट। ओके, सी द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एंड ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। अगेन क्लासेस इसका हो चुका है, आप देखिए फिर से रिवाइज कीजिए नोट्स को रिवाइज। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या है? ओके, दैट टेक्स कंट्रोल द सिचुएशन बाय कन्वेइंग ए क्लियर विजन ऑफ ग्रुप गोल्स। ग्रुप गोल्स का ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ट्रांसफॉर्म कर रहा चीज है। एक लीडर ऐसा हो जो पूरे ग्रुप का गोल को क्लियरली विजुअलाइज कर सके और उसको अपने जूनियर्स को, अपने पीयर मेंबर्स को समझा सके। दिस इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। सिमिलरली ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, rewards and punishment are contingent upon the performance of the followers. Transactional leadership, okay, रिवार्ड मिलेगा, मतलब स्टिक, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, ये पढ़ा है ना आपने मैनेजमेंट में, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। ओके, व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस? डिफाइन इट्स नीड एंड प्रिंसिपल। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इजी क्वेश्चन, बहुत इजी, ये सब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ मैनेजमेंट के लिए 20 आवर्स, 10 आवर्स योर लेक्चर एंड 10 आवर्स इज पीडीएफ, दैट्स इट। मैनेजमेंट में पूरा क्वेश्चन होने वाला है, पूरा पूरा, ठीक है। चलो अब ईएसआई का थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ईएसआई का थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन 23 में आया था। एक्सप्लेन 3 गवर्नमेंट, कितना इजी क्वेश्चन है यार 10 मार्कर में। 3 गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू पॉवर्टी एलिवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स। सिर्फ 3 गवर्नमेंट स्कीम्स। स्कीम्स आर इंपॉर्टेंट इन ईएसआई पार्ट, ओके, स्कीम से क्वेश्चन इस बार भी रहेंगे। और जो आपका ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, उसमें भी स्कीम बेस्ड पैराग्राफ फॉर्म करते हैं वो लोग, और 2-3 क्वेश्चंस दे फ्रेम फ्रॉम दैट कि हाँ यार ये स्कीम, द पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट व्हिच स्कीम, व्हेन दिस स्कीम इज implemented, this scheme is going to provide benefit to which section of the society, है ना। what is the contribution of state government, what is the percentage of contribution of state and union government in this scheme, ठीक है।
अगर कोई पायलट प्रोजेक्ट स्कीम है तो इन विच डिस्ट्रिक्ट और इन विच स्टेट इट हैज बीन लाइक लॉन्च्ड। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहेगा फेज 2 में, और सब्जेक्टिव में भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कोई भी 3 पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का कितना मेजर्स लिया है अभी बजट में ही, वही डाल दो आप इस साल का क्वेश्चन में अगर आता है, बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा आपका, है ना। सी डिस्कस मॉनेटरी पॉलिसी एंड मेंशन इन ब्रीफ एट लीस्ट 8 मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। मॉनेटरी आरबीआई एंड इट्स फंक्शंस, उसका नोट्स देख लो यार। मॉनेटरी पॉलिसी वही 8 सिर्फ 8 ही बताना आपको, रेपो, रिवर्स रेपो, एसएलआर, एमडीएफ, एमएफएस, मल्टीपल ओके। अब देखो ये क्वेश्चन है करंट अफेयर्स, ये सब दोनों स्टैटिक पार्ट। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज इन इंडिया? क्यों ये क्वेश्चन पूछा? सी announcing Google startup schools to enable इतना startups in tier 2 tier 3 cities. Google startup. See again, arise in next breed of entrepreneurs in small cities. तो ये सब जो हमेशा न्यूज में रहता है, ये although these questions were asked, okay, लेकिन देखिए हमेशा न्यूज में 22 में भी रहा है, 23 में भी रहा है, अगेन लास्ट in November 22 women entrepreneurs from tier 2 and tier 2 cities. तो ये न्यूज में रहता है, इस वजह से ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। Okay, this part. तो you need to identify the problems being faced by अब छोटे सिटीज में आएंगे तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होगा उनको, इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम होगा, लोन एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम होगा, कम्युनिकेशन बैरियर होगा, कनेक्टिविटी इशू हो सकता है, इंटरनेट स्मूदन करना है ना, सीमलेस ट्रांजेक्शन ऑफ थिंग्स होना चाहिए। तो स्टार्टअप्स को और वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं मिलेंगे उनको, जो कि एंजल इन्वेस्टर्स मिलने में प्रॉब्लम होगा। तो दीज आर सर्टेन प्रॉब्लम्स। तो आप इसको आराम से पॉइंट वाइज 10, 12 पॉइंट, 15 पॉइंट्स लिखिए और कंक्लूड कीजिए। ओके, कि गवर्नमेंट अभी बहुत ज्यादा लाइक अवेयर है इन ऑर्डर टू लाइक बूस्ट अप द स्मॉल स्टार्टअप्स इन टियर 2 टियर 3 cities and some of the measures that were adopted by the government in order to mitigate these problems. Okay, see question number 4. In context of UNDP's gender equality strategy 2025 gender social norms index for promoting gender equality, what action India taken towards the gender sensitization? 15 mark question, 600 words, again from the newspaper. जून में एग्जाम था, जेंडर बायस अगेंस्ट द वुमेन आया था, यूएनडीपी का रिपोर्ट है, यूएन का रिपोर्ट है। 9 आउट ऑफ 10 पीपल जो इसका रिपोर्ट था कि 90% ऑफ बोथ मेन हैव एटलीस्ट वन फंडामेंटल बायस अगेंस्ट द वुमेन। ये इसके पूरा रिपोर्ट था, इसी के ऊपर ये क्वेश्चन फ्रेम हो गया है ना। तो जो भी रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होगा इस साल के लिए वो हम लोग डील करेंगे। ओके, सी 5 बेटर माइग्रेशन पॉलिसीज फॉर prospering world, elaborate the statement in light of recently released World Development Report 2023 over the migrants. ठीक है, ये देखिए रिपोर्ट अप्रैल में ही पूछा था, over the migrant refugees, है ना, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट जो हो रहा है। और इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया था कि दैट हाउ मतलब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज और एनी सॉर्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज टेकिंग प्लेस इन दैट कंट्री। जैसे बांग्लादेश में क्या हुआ, गवर्नमेंट टर्न हो गया, टर्मोइल हुआ बांग्लादेश में, सिविलियन डिसरप्टेड द गवर्नमेंट और आर्मी कैप्चर्ड द गवर्नमेंट। तो उस केस में माइग्रेशन तो होगा ना, दीज आर लाइक फोर्स्ड माइग्रेशन बिकॉज द कंडीशन इज नॉट फेवरेबल टू लिव इन बांग्लादेश राइट नाउ। तो ये सब चीज जो है ना, ये सब चीज समझना होगा कि माइग्रेशन हो रहा है। तो इट इज नॉट लाइक कि हाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज, जैसे इंडियन डायस्पोरा इज हाईएस्ट इन मिडिल ईस्ट, और हमने देखा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ना ये हमारा पॉजिटिव है, बिकॉज ऑफ मेजर कंट्रीब्यूशन केम फ्रॉम इनवर्ड रेमिटेंसेस, जो कि कहां से मिल रहा है, आवर डायस्पोरा रिसाइडिंग इन मिडिल ईस्ट। करेंटली व्हाट इज हैपनिंग मिडिल ईस्ट में, देखो आप, जियोपॉलिटिकल टेंशन इज देयर, ऑल्दो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में हो रहा, बट समवेयर इट इज गोइंग टू इंपैक्ट अदर कंट्रीज ना। यूक्रेन में क्या हुआ, रसिया यूक्रेन वॉर में हम लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा अपने लोगों को वहां से। तो फिर अगर ये सब चीज होगा तो दीज आर फोर्स्ड माइग्रेशन ना, ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयमेंट के लिए माइग्रेट हुआ था, बट नाउ दे आर फेसिंग द फोर्स्ड माइग्रेशन थिंग्स।
तो ये सब रिपोर्ट्स में आते हैं, जो जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स होते हैं ना, उसमें इसी तरह का इंटरप्रिटेशन होता है. ओके. See, in the light of report of currency and finance released by RBI, इस साल भी आया currency and finance, and we have framed the questions from currency and finance report in our phase 1 also. ठीक है. और इस पे सीधा क्वेश्चन देखिए आप, मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, और देखिए रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस. सी, May 2023 it was released. That's why we have dedicated session for circulars, RBI circulars, RBI guidelines. बहुत बच्चे को इंपॉर्टेंस ही नहीं पता चल रहा है उनका कि यार सर्कुलर क्यों ले रहे हैं सर, क्यों गाइडलाइंस. सीधा क्वेश्चन है. तो आपके फेज 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट, फेज 2 के लिए इंपॉर्टेंट. देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, इस रिपोर्ट का पार्ट देखिए, क्लाइमेट स्ट्राइक बैक्स, मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज इन इंडिया, देखिए पीडीएफ है. Climate change and financial sectors. 3 landmark global collaboration on climate change. Policy options to mitigate the climate risk. इसी के अंदर है global collaboration. ISA, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हुआ, इसका हेडक्वार्टर, सब कुछ अंदर ही है, गुड़गांव में था. और जो नेट डिमांड कंट्रीब्यूशन है ना, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, UNFCCC, COP29 रिसेंटली. तो ये सब कुछ आपको आप ये कर सकते हैं, इंडक्ट कर सकते हैं आपने आंसर्स को, अगर आप विजिलेंट होंगे फॉर करंट अफेयर्स, तभी तो इंडक्ट कर पाइएगा. नहीं तो फिर एक ट्रेडिशनल जो आंसर बच्चे लिखते हैं वही लिख के आइएगा, वही वोमिट करके आइएगा जो आपके पास नॉलेज है. तो फिर यार वो वही नंबर देगा जो उसको देना है. 15 में देगा 2 नंबर, 3 नंबर देगा, एवरेज मार्किंग होगा. 6 नंबर देगा, 7 नंबर देगा, 12 नंबर तो नहीं मिलेगा. वी हैव टू हंट फॉर दैट 12 नंबर. ओके. सी, 2022 में जून में एग्जाम हुआ था, सीधा क्वेश्चन. Although urbanization has been spreading in hinterland, caste and gender discrimination is rampant. Urbanization हो रहा है, but this discrimination is rampant. और सी, एंटी डिस्क्रिमिनेटरी बिल आया था, और क्वेश्चन उसी पे है. You justify the protective discriminatory policies. 15 मार्कर्स. ठीक है. तो न्यूज से आया था क्वेश्चन. व्हाट इज मीन बाय इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये कहाँ पे आया था एंटी डिस्क्रिमिनेटरी? ये हमारे कंट्री में नहीं, बांग्लादेश में आया था. ओके. व्हाट इज मीन बाय इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, कितना इजी क्वेश्चन. 1991 का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म था, जो एलपीजी था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. व्हाट इज मीन बाय, एक्सप्लेन ऑल द टाइप्स ऑफ रिफॉर्म इन इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया फ्रॉम 1990 टिल नाउ. कितना ब्रॉडर डायमेंशन इस क्वेश्चन का, समझिए आप. एक्सप्लेन ऑल द टाइप्स, इट इज पॉसिबल, इज इट पॉसिबल. लेकिन मेजर रिफॉर्म्स तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. मेजर रिफॉर्म्स जो कि आया इकोनॉमिक पॉलिसीज में टिल नाउ, रिसेंटली जो रिफॉर्म्स लाया है अभी तक का, डाल दीजिए. इसमें सब कुछ आएगा. इसमें आपका जो डिजिटल रिफॉर्म्स ला रहे हैं ना गवर्नमेंट, यूपीआई के लिए अभी बताया ना मैंने, 5 रिफॉर्म्स लेके आए. हाँ, लिमिट बढ़ा दिया, ठीक है, 1 लाख से 2 लाख कर दिया, 1 लाख से 5 लाख कर दिया इनकम टैक्स पेमेंट के लिए, हॉस्पिटलाइजेशन और एजुकेशन सर्विसेज के लिए 5 लाख कर दिया. यूपीआई का रिफॉर्म है इसी साल का. तो डिजिटल ट्रांजेक्शन में ये रिफॉर्म लाया. बैंकिंग सेक्टर में जो रिफॉर्म लाया, आईबीसीज है, डीआरटी है, एआरसी है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, जेएलएफ है, ये सब बैंकिंग सेक्टर का रिफॉर्म है. तो ये सब चीज आप इसको क्वेश्चन को कैटेगराइज करके लिखिए, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन लिखने में. ठीक है. और उसको एकदम से लाइक मिलाना नहीं, मिक्सिंग नहीं करना है, टीचर को चेक करने में इजी हो, ऐसा लिखिए. See, question number 3. Financial resilience is essential to any financial institution business. Discuss in light of financial stability report of RBI. हमेशा से important रहता है ये. Challenges faced by the Indian economy and economic reforms taken in views of COVID-19. COVID-19 में क्या क्या challenges face करना पड़ा इंडियन इकोनॉमी, क्या हुआ? तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में इट वाज देयर. ओके. और ये बहुत ही जनरलिस्ट क्वेश्चन, एनीवन कैन आंसर, जिसको थोड़ा सा नॉलेज है ईएसआई का, इकोनॉमिक पार्ट का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है उनके पास, ही और सी कैन आंसर इजीली. ठीक है. रूरल एंटरप्रेन्योरशिप पे क्वेश्चन था, हाउ द hinterland young entrepreneurs can solve India's social challenges. See in the news.
Is rural India becoming key attraction of emerging entrepreneurs? Times of India, emerging trend in rural commerce to watch out in 2022. ये सब आर्टिकल से सीधा क्वेश्चन पूछा है, आर्टिकल से, न्यूज आर्टिकल से, ओपिनियंस जो आते हैं ना आर्टिकल से, बिजनेस स्टैंडर्ड, लाइव मिंट, द हिंदू, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, कोई भी न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर, रीडिंग हैबिट्स पे थोड़ा डालिए आप, अवेयर रहिएगा, विजिलेंट रहिएगा चीजें क्या हो रही है। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन करंट मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया जो गवर्नमेंट बना रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी, तो जो बजट में अनाउंस हुआ पॉलिसीज, वो भी तो मॉनेटरी पॉलिसीज के अंदर आ रहा है। व्हाट इज एनबीएफसी, कितना स्टेट क्वेश्चन है 10 मार्कर, तो आप समझ रहे 10 मार्कर में स्टेट क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो लोग, लेकिन 15 मार्कर में वो लोग न्यूज़पेपर से पिक कर रहे हैं। आप देखिएगा हमेशा ऐसा हो रहा है। ओके, सी हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम बैंक। मेंशन 5 टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज, बहुत टाइप ऑफ एनबीएफसीज हमने पढ़ा है, ठीक है, तो नोट से आप पिक करके इसको, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, आई आल्सो से इन फेज 1 आल्सो टू रिवाइज दोस पीडीएफ नोट्स, और फेज 2 के लिए तो इंपॉर्टेंट है, सिलेबस का पार्ट है आपका सीधा सीधा। 21 में 15 फाइनेंस कमीशन पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ट्रांसफर, इट वाज देयर, न्यूज में था, देखिए आप 21 में इट वाज देयर इन द न्यूज, 15 फाइनेंस कमीशन। Define the various measures of poverty estimation. Straightforward question. Various measures of poverty estimation and their demerits and merits in terms of per capita income, inflation, consumption, and safety net. Okay. What are the changes, trends in globalization after global financial crisis? देख रहे हैं, repeat हुआ ना, changes in globalization. क्या changes आया after the global financial crisis? बजटरी रिकमेंडेशन और स्ट्रेटेजिक एंड नॉन स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होता है ना, डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिक भी होता है, नॉन स्ट्रेटेजिक होता है, तो रिकमेंडेशन क्या था उस टाइम, ठीक है, ये सब चीज। तो डिसइन्वेस्टमेंट तो इंपॉर्टेंट है ही, आपका मैक्रो इकोनॉमिक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रोल ऑफ डेमोग्राफी इन इंडिया इकोनॉमिक ट्रांजिशन, सी डेमोग्राफी रोल, और इंडिया का करेंटली क्या है, वी हैव यूथ डेमोग्राफी। डेमोग्राफी कैसा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड यूथ है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूथ इंडिया में है, तो ये हाउ इट इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द इकोनॉमी, कैसे इट इज, हम लोगों को अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को ना, वी शुड नॉट टेक आवर, ये कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि वी शुड नॉट काउंट दोज हैंड्स, दोज आवर डेमोग्राफिक पॉपुलेशन एज ए बर्डन ओवर, रेदर वी शुड कंसिडर दोज एज एन एसेट्स, एसेट फॉर आवर कंट्री, एसेट, ह्यूमन रिसोर्स एसेट। ओके, अब गवर्नमेंट का ये काम है कि हाउ टू हार्नेस द एसेट्स फ्रॉम आवर डेमोग्राफिक डिविडेंड। ओके, तो ये क्वेश्चन देखिए, क्लाइमेट चेंज से एक क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट इस साल भी करते हैं, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ कन्वेंशन, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इम्पैक्ट, मिटिगेशन रूल्स क्या होना चाहिए, सो क्लाइमेट चेंज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। कमिटमेंट इन इंडिया इन लाइट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड हेल्थ सेक्टर्स, 10 मार्क क्वेश्चन। ओके, ये चीज करना है, and this is all about today's session. All right, so thank you for being with me, and see, our ADI AM mentorship course has been launched, and today is the last day to enroll the ADI mentorship program in just 1500. Okay, from tomorrow onwards it will be priced 2500. All right, or that's all for today. Thank you very much. ऑब्जेक्टिव जो हुआ है उसके लिए भी हम लोग सेशन ले लेंगे, एक स्ट्रैटेजी समझ लेंगे, और ऑब्जेक्टिव्स के लिए ना वी विल गोइंग टू प्रोवाइड यू कंटिन्यूअस टेस्ट इन ऑर्डर टू लाइक प्रिपेयर इफेक्टिवली फॉर बोथ ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, यू जस्ट कमेंट। ओके, क्या ये हेल्पफुल था, इज इट हेल्पफुल फॉर यू? क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए हम लोगों को आंसर राइटिंग में, समझ रहे हैं आप, क्या अप्रोच होना चाहिए आंसर राइटिंग में? तो आपको कहीं ना कहीं विजन मिलेगा, मतलब यू विल आइडेंटिटी, आपको विजन मिलेगा, यार आंसर मेरा ऐसा होना चाहिए, जो मैं अभी तक लिखता आ रहा हूँ एक नॉर्मल ट्रेंड में, वो चीज नहीं, आई हैव टू चेंज द ट्रैक ऑफ राइटिंग आंसर्स, आई हैव टू चेंज द ट्रैक टू थिंक अबाउट दैट क्वेश्चन, आई हैव टू चेंज द अप्रोच, ये चीज समझ में आया। यस डेफिनेटली यशी,
we will have some revision courses on important topic for phase 2 also. Don't worry for that. We will revise the things. फिर से brush up करेंगे यार, हमारे पास है ना 1 month, in fact more than 1 month. Okay, फिर से brush up करेंगे और बहुत अच्छे से चीजों को कंप्लीट करेंगे. और आरबीआई का मेंस में अगर आप लोग जो अप्रोच हम लोग आपको सजेस्ट कर रहे हैं इन द ऑब्जेक्टिव और इन द सब्जेक्टिव सेशन, थ्रू आवर सब्जेक्टिव सेशन, वो अप्रोच फॉलो अप कीजिएगा. बिलीव मी, यू जस्ट कंपेयर योर मार्क्स. ठीक है, आप लास्ट ईयर में आपने मेंस दिया होगा, इस साल आप मेंस दे रहे हैं, आप कंपेयर कर लीजिएगा. ठीक है, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बूस्ट अप योर मार्क्स. ओके, थैंक यू वेरी मच. दैट्स ऑल फॉर टुडे. गुड नाइट, टेक केयर.